वेरी वेरी वॉर्म वेलकम टू ऑल। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड हाउ वी कैन ओवरकम दीज बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन. So basically we shall be defining our concept with business communication. However, for the purpose of giving examples, personal communication का भी हम दे सकते हैं. So the contents of this video include the definition of communication, barriers of communication, and how we can overcome these barriers of communication. So the first part is the definition of communication. So if you go to the various other videos which has already been uploaded, you can go to the playlist of communication of my channel and then you can check it out. We have uploaded videos on the types of communication, the process of communication, the nature of communication, and the various basic concept of communication. अभी जो कम्युनिकेशन होता है ये एक ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन होता है किसके बीच में, बिटवीन द रिसीवर एंड द सेंडर, राइट. तो अगर हम सेंडर हैं और हम किसी को मैसेज अगर दे रहे हैं तो उनको एक्चुअली उसी भाव में दे हैव टू अंडरस्टैंड इन द सेम वे इन विच आई एम गिविंग द मैसेज. इट इज़ अ टू वे प्रोसेस, एक साइक्लिक प्रोसेस होता है. जब सेंडर सुनते हैं उसको अंडरस्टैंड करते हैं तो व्हेन दे गिव अ फीडबैक एंड दैट इज़ व्हेन द कम्युनिकेशन इज़ कंप्लीट. So these are the various definitions which have been given by the various authors. Communication is the transfer of information between sender to a receiver with the information being understood by the receiver. As long as the receiver does not understand the message that you're trying to say, it is totally useless. Probably given this example before, but if you go, you've seen the movie PK. He says, I love chicken. इसका मतलब ये नहीं होता है कि मुझे चिकन से बहुत प्यार है. इसका मतलब बेसिकली अगर हम बोल रहे हैं आई लव चिकन, मुझे चिकन खाना अच्छा लगता है, तो क्या है कि आप एज अ सेंडर क्या बोल रहे हैं, आपका रिसीवर उसको उसी भाव में जब अगर समझे and then it gives us feedback, and then of course do not forget gives a feedback, only then the process of communication is complete. Communication is the art of developing and attaining understanding between people. It is a process of exchanging information and feelings between two or more people, and it is essential to effective management. Obviously, अगर एक मैनेजमेंट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन होता है, फॉर्मल होता है, इनफॉर्मल होता है. अब हम सिर्फ फॉर्मल पे अपने कम्युनिकेशन को नहीं बेस कर सकते या सिर्फ इनफॉर्मल पे कम्युनिकेशन नहीं बेस कर सकते, बट गोइंग टू द वेरियस ऑब्जेक्टिव्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, एक कम्युनिकेशन का ये भी फंक्शन होता है कि ये एक मोटिवेशन प्रोवाइड करता है. तो ऑब्वियसली एक इफेक्टिव मैनेजमेंट बना के रखने के लिए ऑल टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, ओरल, रिटन, जेस्चुरल कम्युनिकेशन, वर्बल, नॉन वर्बल, फॉर्मल, इनफॉर्मल, सब टाइप का कम्युनिकेशन ज़रूरी होता है. कम्युनिकेशन इज द सम ऑफ ऑल थिंग्स वन पर्सन डज when he wants to create understanding the mind of another. It is a bridge of meaning. It involves a systematic and continuous process of telling, listening and understanding. Please do not forget the word understanding, because there is receiver, as discussed earlier in the previous video. हमारा सेंडर है, इनकोड किया मैसेज भेजा, डिकोड हुआ, उसके बाद रिसीवर है जो उस मैसेज को अंडरस्टैंड कर रहा है, फीडबैक दे रहा है. इफ़ the receiver does not understand the message in the same way as it has been intended by the sender, the total purpose of communications is defeated. ठीक है, तो बहुत ज़रूरी है ये सिर्फ लिसनिंग, एक्टिव लिसनिंग, और ये उसको समझना. नाउ कमिंग टू द पार्ट ऑफ द वीडियो विच इज़ द causes of communication, barriers of communication. So there are various barriers of communication. सबसे पहले हम लोग देखेंगे फिज़िकल बैरियर्स. अब फिज़िकल बैरियर क्या होता है? फिज़िकल बैरियर वही होता है कि जहाँ हमारी दूरियाँ होती है. तो फिज़िकल बैरियर में आपका डिस्टेंस हो सकता है, टाइम हो सकता है, नॉइज़ हो सकता है. तो आप किसी से दूर में खड़े हैं, बहुत सिंपल सा बात है, आप एक रूम में खड़े हैं, एक रूम से खड़े होकर चिल्ला के दूसरे रूम से बुला रहे हैं. इज़ इट पॉसिबल? नो ना. मतलब थोड़ा सा तो डिस्टेंस में थोड़ा सा दिक्कत हो जाती. प्रॉब्ली कभी कभी होता है एक रूम से दूसरे रूम में यू गिविंग अ शाउट आउट टू योर सिस्टर और योर मदर, शी इज़ नॉट लिसनिंग बिकॉज वो दूरी है. एज सिंपल एज दैट इज़ अ बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन. उसके बाद और भी बहुत टाइप का फिजिकल बैरियर्स हो जाते हैं. जैसे आपका टाइम हो जाता है. टाइम क्या होता है कि बिकॉज एट टाइम्स बहुत हमारा टाइम प्रेशर हो जाता है, तो जो पर्सन को सपोज एक
ऑर्गेनाइजेशन में एक आदमी है जिसको आपको कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है। अब उसके पास इतना कंस्ट्रेंड हो गया काम का, तो उसका टाइम का पता नहीं चला, टाइम प्रेशर हो गया कुछ, वो अपने आप को कंसर्न पर्सन को विद इन स्पेसिफाइड जो डेडलाइन है उसके अंदर वो नहीं बता पाया। एंड इन्फॉर्मेशन का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है, इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डेफिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ टाइमली डेटा, टाइमली प्रोसेस डेटा। वो जब तक समय पे पहुँचे तो ही इन्फॉर्मेशन है। अगर समय के बाद पहुँचे तो वो इन्फॉर्मेशन एक नॉलेज बन के रह गया है, वो काम का नहीं है। तो ये एक बैरियर हो सकता है। देन इज़ नॉइज़। नॉइज़ इज अनदर फिजिकल बैरियर। लाउड नॉइज़ मशीन का, फैक्ट्रीज़ का, ऑफिस का, कभी कभी लाउड स्पीकर का, प्रोसेशंस का, स्ट्राइक्स का, स्ट्रीट्स पे जो हम आप अगर ऑफिस आपका इट इज़ ऑन द स्ट्रीट, राइट ना, माई हाउस वेर आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, इट इज़ ऑन द मेन रोड, तो हमारा वो नॉइज़ एक मेजर फैक्टर हो जाता है जो एक फिजिकल बैरियर क्रिएट करता है। So these are the three physical barriers which at times makes communication little difficult. Other than these barriers, there are personal barriers. Personal barriers होता है कि आप किसी के बारे में कुछ एटीट्यूड्स, ओपिनियंस बना लेते हैं, कुछ हमारा प्रीजुडिसेस होते हैं, कुछ इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स होते हैं, कभी कभी किसी के बारे में कुछ परसेप्शन बना लेते हैं, हम किसी को गलत तरीके से जज करते हैं। इससे क्या होता है, वी आर इनएबल टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। ऐसा जब प्रॉब्लम क्रिएट होता है कि आप अपना बात आई गिव यू एन एग्जाम्पल हियर। सपोज आई गिव यू एन एग्जाम्पल, आई नॉर्मली गिव दिस इन माई क्लास। 3 लोग हैं, 1 2 and 3। दिस इज़ 1, दिस इज़ 2 and दिस इज़ 3। This person says, one जो है ना, she is all decked up and comes to the college, right? And she is like, वो second person को उतना पसंद नहीं करती है, 3 को बहुत पसंद करती है। 2 जो वाला है, 2 के पास बोलेगी, why are you coming like this to the college? Ma'am would like, you'll get a good dressing down, you shouldn't be doing this। तो 1 बोलती है कि क्या यार इसी को समझ में आता है ज़्यादा, मेरे को ज़्यादा समझ में आता है, बेकार का बोल के जा रही है, व्हाट इज़ दिस, आई अंडरस्टैंड व्हाट द नॉर्म्स ऑफ द कॉलेज आर, आई एम वेल विद इन द नॉर्म्स। 3 इसके पास आती है और एग्जैक्टली सेम सेंटेंस बोलती है, क्या ऐसे तैयार होके क्यों आ रहे हो, प्रॉब्लम ये मैम लोग शायद गुस्सा करें। तो द वन थिंग्स, ये तो 3 मेरे को बहुत पसंद करती है, ये तो मेरे को गलत नहीं बोलेगी। और क्योंकि उसने पहले 2 के बारे में एक अपना जजमेंट बना के रखा हुआ था, तो ऐसा है कि 2 और 3 दोनों ने एक ही चीज़ कहा। उसके बाद भी क्या होता है कि दे हैव अ प्रेजुडिस कि नहीं ये तो गड़बड़ है, गलत बोल रही है, राइट। नाउ द अदर इज वी आर सो क्लोज येट सो फार, दैट काइंड ऑफ थिंग। नाउ रिजॉल्व, ओके, द नेक्स्ट इज योर सिमेंटिक और लैंग्वेज बैरियर। अभी क्या है ना, पहला प्रोसेस क्या होता है, देयर इज द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इज द सेंडर, देन एनकोडिंग, मैसेज, डिकोडिंग एंड देन रिसीवर। एनकोड हम जब कर रहे हैं, अगर हम आपको बोल रहे हैं तो हिंदी और इंग्लिश में बोल रहे हैं, मेरे दिमाग में ये सिंबल एनकोडिंग, डिकोडिंग, वॉट एवर EN वॉट एवर जो आता है वो हम बोल रहे हैं। मैसेज आप तक जा रहा है, आप उसको सुन रही हैं, सुनने के बाद आप उसको यू आर डिकोडिंग, यू आर अंडरस्टैंडिंग, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ओनली एंड ओनली इफ यू नो इंग्लिश एंड हिंदी, सिंपल। तो कभी कभी क्या होता है कि आप ये लैंग्वेज बैरियर जो होता है ये एकदम मेजर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, बिकॉज वी गो टू सर्टन प्लेसेस वेयर वी डू नॉट नो द लैंग्वेज, सो दिस लैंग्वेज बैरियर इज़ अ मेजर इशू। देन आपका इसके अलावा आपका दूसरा आता है वो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बैरियर है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में क्या हो जाता है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, देयर वाज अ टाइम व्हेन देयर वाज अ नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल। नाउ व्हाट इज स्पैन ऑफ कंट्रोल? स्पैन ऑफ कंट्रोल आर नंबर ऑफ पीपल हु आर वर्किंग अंडर यू, राइट। अगर हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बहुत फ्लैट है तो क्या होता है, टॉप मैनेजमेंट एंड बॉटम मैनेजमेंट कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग रहता है। अगर कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग रहता है देन देयर इज़ नो प्रॉब्लम। But if there is a narrow span of control, the kind of communication between this person and this person is less. ऐसा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। सॉरी फॉर दिस। ऑलराइट, द नेक्स्ट वन इज आर स्टेटस और पोजिशन बैरियर। नाउ स्टेटस और पोजिशन बैरियर इज लाइक कि एट टाइम्स यू फील दैट आई एम अ सुपीरियर, ठीक है, हमें सबऑर्डिनेट्स का बात नहीं सुनना चाहिए, ये स्टेटस बैरियर हमारे में हो जाता है जब हम छोटों की बात नहीं सुनना चाहते हैं या सबऑर्डिनेट्स की बात नहीं सुनना चाहते हैं। इनएडिक्वेट अटेंशन बैरियर।
एट टाइम्स होता है, क्लास में भी नहीं होता है कि हम हैं यहाँ पे लेकिन दिमाग कहीं और है। तो ये अगर हम हमारा ओवर बर्डन विद बिजनेस और हम बोर हो रहे हैं, या जो मैसेज बोला जा रहा है वो बोरिंग लग रहा है, मेरे मन लायक नहीं लग रहा है, तो मेरा दिमाग कहीं और चला जाएगा। तो अगर इफ़ आई एम नॉट पेइंग अटेंशन टू वट एवर इज़ बीइंग सेड, दैट इज़ कॉल्ड इनएडिक्वेट अटेंशन बैरियर। इसके अलावा देर इज़ इमोशनल एटीट्यूड ऑफ बैरियर। Again the same thing, you coming to the class and suppose you had a fight with your mother or father or your brother and you came to the class, or for that matter your teacher comes to the class with a very different kind of state of mind. So ऐसा क्या होता है कि even the best thing is being said no, because your state of mind is like disturbed. Stress, इसलिए stress management इतना important topic हो गया है. Your state of mind is disturbed, you do not feel like hearing it out, or you do not feel like you're not basically getting whatever is being said. दिमाग कहीं और रहेगा, आप परेशान हो, या वो उससे परेशानी नहीं हो सकता। आप बहुत खुश हो किसी चीज़ को लेके, आपकी बहन की शादी हो रही है तो आप बहुत खुश हो, दिमाग कैसे शादी का अरेंजमेंट करना है, क्या लहंगा पहनना है और क्या शेरवानी पहनी है, उसमें आपका दिमाग घूम रहा है। तो क्या होता है, ये इमोशनल जो आपके दिमाग में है, इसके कारण आपको जो प्रेजेंटेशन दिया जा रहा है वो you're नॉट रजिस्टरिंग इट। दैट इज़ ऑल्सो एन इमोशनल एटीट्यूड बैरियर। प्री मैच्योर इवेल्युएशन बैरियर, जो हम आपको एग्जांपल दे रहे थे वो 3 फ्रेंड्स का, कि पहले उसने एक जजमेंट बना लिया है किसी के बारे में, या फिर कुछ हम बोलना स्टार्ट करें, इवन व्हेन आई स्टार्ट माय लेक्चर, बिफोर इवन हियरिंग टू द एंटायर लेक्चर, यू हैव अ थिंक कि अच्छा मैम इसी पैटर्न में हर एक बार बोलती है, यही एग्जाम्पल देती है, तो प्रॉब्ली सेम ही चीज़ रहेगा। एक प्रॉब्ली आई माइट से समथिंग डिफरेंट नो, तो सुनने से पहले ही हम एक जजमेंट अपने लिए बना लेते हैं। ऐसा जो है ना, ऐसा प्री मेच्योर इवैल्यूएशन हमारे अंडरस्टैंडिंग को बैरियर मीन्स डिस्टॉर्ट करता है। दिस इज़ अ बैरियर। देन रेजिस्टेंस टू चेंज बैरियर। दे से चेंज इज़ द ओनली थिंग विच इज़ कॉन्स्टेंट। हमारा जो बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन है एक बिज़नेस एनवायरनमेंट में ऑपरेट करता है, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, और बिज़नेस एनवायरनमेंट लगातार चेंज होते रहता है। कभी कभी क्या होता है, जनरल लोगों की ये हैबिट होती है, दे ट्राई टू स्टिक इन टू द कम्फर्ट जोन। इफ दे ट्राई टू स्टिक इन टू द कम्फर्ट जोन, या कोई नई चीज़ें जो आती हैं उसको वो आत्मसात नहीं करना चाहते, उससे वो एडजस्ट नहीं करना चाहते, उसको अपोज करते हैं। प्रॉब्ली ये चेंजेस जो है बहुत बेनिफिशियल है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, लेकिन ये चेंज से रेजिस्ट करना एक नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी हो जाता है कि उन्हें ये प्रॉब्ली ऑफ द फियर दैट दे माइट लूज देयर पोजीशन, और दिस आई एम वेरी कंफर्टेबल डूइंग सर्टन जॉब एंड इफ देयर इज सर्टन चेंज आई माइट नॉट बी एबल टू एडजस्ट टू इट। तो ये जो डर होता है, ये चेंज एक रेजिस्टेंस बना देता है जो प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं होने देता है। लैक ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट बैरियर, दिस इज़ तो वन ऑफ द मेजर इशूज़। व्हाट हैपन्स इज़ कभी कभी भरोसा खो देते हैं। एज़ फॉर दैट मैटर, अगर हम ऑर्गेनाइजेशन में फ़र्स्ट टाइम जा रहे हैं तो हम सब पे भरोसा करते तो ऐसे नहीं जाएंगे। आई हैव टू इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम यू डेवलप द ट्रस्ट, कि आप उनके साथ बात कर सकते हो, अपने मैसेज प्रॉपर्ली समझा सकते हो, आप इतने कॉन्फिडेंट हैं कि आप जो भी इंफॉर्मेशन उनको दिए जा रहे हैं वो उनसे समझा जा रहा है एंड दे आर प्रॉपर्ली रिसीविंग इट, राइट। सो दीज आर सम ऑफ द बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें आपका पर्सनल बैरियर, फिजिकल बैरियर, सिमेंटिक बैरियर, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बैरियर, स्टेटस बैरियर, inadequate attention barrier, emotional attitude barrier, premature evaluation barrier, change और mutual trust का problem सब आया। Now there are various ways, इसके बाद ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ यही barriers हो। Imagine इंटरनेट, कभी कभी क्या होता है, आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं और बारिश हो रही है, ठीक है, तो आपका जो इंटरनेट होता है वो वीक हो जाता है, ठीक है, एक फिज़िकल बैरियर हो गया। आप फ़ोन पे हो, कभी कभी आवाज़ नहीं आ रही है, ये भी एक बैरियर हो गया। दीज ऑल्सो यू कैन इंक्लूड इन योर आंसर्स। नाउ वेज टू ओवरकम बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। अगर हम चाहते हैं कि मेरा काम अच्छे से होता रहे, अगर हम चाहते हैं कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी बनी रहे, उनका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा रहे, तो ये ह्यूमन रिसोर्सेज का जो ग्रीवेंसेस नहीं हो, डिस्प्यूट्स नहीं हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। अगर वो ग्रीवेंसेस और डिस्प्यूट से दूर रहना चाहते हैं और एक प्रॉपर हेल्दी ऑर्गेनाइजेशनल कंडीशन क्रिएट करना चाहते हैं, तो ये बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन हटाना बहुत ज़रूरी हो जाता है।
So one of the major ways, or one of the ways of removing this barriers of communication is eliminating the differences in perception. अभी क्या हो रहा है, जब रिक्रूटमेंट हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, जब सिलेक्शन हो रहा है, तो जब आप रिक्रूट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन वाले लोग जाते हैं, तो वो आपका सिर्फ एग्जामिनेशन और मार्क्स नहीं देखते, बल्कि आपकी इंटरव्यू लेते हैं. इंटरव्यू क्यों लेते हैं? ताकि दे अंडरस्टैंड दैट दे हैव द कमांड ओवर द लैंग्वेज दैट यू आर स्पीकिंग, यू हैव द कमांड ओवर द रिटन लैंग्वेज यू आर स्पीकिंग. जब ये सब हो जाता है तो आप सॉरी रिटन लैंग्वेज दैट यू आर राइटिंग, ये सब हो जाता है तो फिर आपका, जब आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं तो आपका इंडक्शन प्रोग्राम होता है. इंडक्शन प्रोग्राम में कंपनी की जितनी पॉलिसीज़ होती हैं वो सारी एम्प्लॉयज़ को समझाई जाती हैं, प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जाता है, ताकि लोग का इस चीज़ में दिमाग क्लियर रहे, ये प्रॉब्लम उनका ना हो कि कहीं भी प्रॉब्लम हो सकता है या कोई उनके दिमाग में कुछ प्रॉब्लम अगर आ जाए. देन इज़ द इमोशनल स्टेट. तो ड्यूरिंग कम्युनिकेशन वन में यूज़ इफेक्टिव बॉडी लैंग्वेज. बॉडी लैंग्वेज इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर कम्युनिकेशन. ये ही शुड नॉट शो द इमोशंस वाइल कम्युनिकेशन, ताकि रिसीवर को गलत तरीके से उसको इंटरप्रेट करे. तो इमोशनल स्टेट जो है उसमें कम्युनिकेटर जो रिसीवर एज वेल एज द सेंडर, वो बेसिकली अपना थोड़ा बॉडी लैंग्वेज कम्युनिकेट करके अपना दिमाग का थोड़ा सा स्थिर करके दे कैन ओवरकम दिस बैरियर. अवॉइड इंफॉर्मेशन ओवरलोड. सी द मैनेजर शुड नो हाउ टू प्रायोरिटाइज देयर वर्क, सेटिंग अप प्रायोरिटीज़. ठीक है, आपका जब एक मैनेजर होता है या कोई भी होता है एज फॉर दैट मैटर, बहुत सारे काम होते हैं दिन भर के, बट आप क्या करते हैं, हम प्रायोरिटी सेट करते हैं कि पहले कौन सा काम, राइट. तो अगर मैनेजर्स अपना काम प्रायोरिटाइज कर देते हैं तो वो क्या होता है, अपने आप को ज़्यादा ओवरलोड नहीं करते हैं. अगर ओवरलोड नहीं करते हैं तो अपना काम भी समय पे कर पाते हैं. अगर काम समय कर पाते हैं तो अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ, अपने पीयर्स के साथ, अपने सीनियर्स के साथ क्वालिटी टाइम बिता सकते हैं, उनका प्रॉब्लम सुन सकते हैं, उनसे फीडबैक्स ले सकते हैं. और ये फीडबैक्स देना जो है, दिस हेल्प्स इन रिमूविंग बैरियर्स टू कम्युनिकेशन. गिव कंस्ट्रक्टिव फीडबैक. अब देखिए क्या कहते हैं ना कि कभी ज़्यादा अनलेस अदरवाइज इट इज़ वेरी नेसेसरी, अवॉइड गिविंग नेगेटिव फीडबैक. क्योंकि क्या होता है, वन ऑफ द मेजर इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन इज़ इट एक्ट्स एज अ मेजर सोर्स ऑफ मोटिवेशन टू द एम्प्लॉयज़. एम्प्लॉयज़ अपने सीनियर्स के बाद से बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं काम करने के लिए. अगर आप उनको, जब भी वो आ रहे हैं तो आप उनको अगर डांट दे रहे हैं या नेगेटिव फीडबैक दे रहे हैं तो वो कंस्ट्रक्टिवली काम नहीं कर पाएंगे, राइट. और जब कंस्ट्रक्टिव फीडबैक रहता है तो जो देयर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन बिटवीन द सुपीरियर एंड द सबऑर्डिनेट्स. एलिमिनेट द डिफरेंसेस between eliminate the differences in perception, that तो we have already discussed कि जो ऑर्गेनाइजेशन को अपना जो एलिमिनेशन करना चाहिए. लैंग्वेज सिंपल रखनी चाहिए जितना हो सके, हमें बहुत डिफ़िकल्ट लैंग्वेज नहीं यूज़ करना चाहिए, सिंपल लैंग्वेज यूज़ करना चाहिए, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए. एक्टिव लिसनिंग. एक्टिव लिसनिंग इज़ दिस डिफरेंस बिटवीन हियरिंग एंड लिसनिंग. हियरिंग मतलब हम सिर्फ सुनते हैं, और जब हम लिसनिंग करते हैं मतलब हम उसको समझने के लिए सुनते हैं. तो हमने जब कहा कि हमारा प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में है, सेंडर है, इनकोडिंग है, मैसेज है, डिकोडिंग है, और उसके बाद रिसीवर है. रिसीवर हैज़ टू अंडरस्टैंड द मैसेज इन द सेम वे दैट द सेंडर इंटेंड्स टू सेंड इट एंड देन गिव प्रॉपर फीडबैक, राइट. एंड इफ द रिसीवर इज जस्ट हियरिंग, सिर्फ सुन रहे हैं, वो उसको समझ नहीं रहे हैं, तो वो प्रॉपर उस इट्स द कम्युनिकेशन इज़ इनकम्प्लीट. वो सही तरीके से बता भी नहीं पाएंगे, तो ये एक अलग प्रॉब्लम है. यूज़ सिंपल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. जैसे हमने आपको कहा कि कॉम्प्लेक्स नैरो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर नहीं होता, दे शुड बी अ ब्रॉड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, सिंपल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. ये बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए. हियरार्की लेवल जो, अगर नैरो ये ब्रॉड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बोल रहे हैं, मतलब इसका जो हियरार्कियल लेवल्स है वो थोड़ा सा एज ऑप्टिमम होना चाहिए, ज़्यादा ना कम. देयर शुड बी आइडल स्पैन ऑफ कंट्रोल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, कि लोग जितने लोग काम कर रहे हैं आपके अंदर, वो सब आपकी बातें ठीक से सुन रहे हैं, ठीक से कर रहे हैं. Proper media selection. There are either, if there is a manager and there is a subordinate, then there can be oral communication, there can be written communication.
ओरल कम्युनिकेशन आप डायरेक्टली बात कर सकते हो, फ़ोन पे बात कर सकते हो, डायरेक्टली बात कर सकते हो। फॉर्मल कम्युनिकेशन में आपका जो होता है, इधर यू कैन सेंड नोटिस, मेमो, रिपोर्ट्स, ईमेल्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लॉट्स ऑफ थिंग्स. And there are various importance of verbal as well as non-verbal या oral as well as written communication. अब मैनेजर को क्या करना है, उनको ये देखना है कि भैया मेरा काम क्या है, जो मेरा काम है उसके हिसाब से हमें अपना मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन सिलेक्ट करना है. अगर उनको नॉर्मली मीटिंग करनी है तो ऑब्वियसली फेस टू फेस कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन चलेगा. अगर उनको बोर्ड ऑफ मीटिंग बुलानी है तो फेस टू फेस कम्युनिकेशन चलेगा. लेकिन अगर उनको मोटिवेट करना है तो फेस टू फेस कम्युनिकेशन या ओरल कम्युनिकेशन चलेगा. लेकिन अगर कोई नोटिस भेजनी है तो रिटन कम्युनिकेशन चाहिए. अगर कोई मेमो भेजना है, रिपोर्ट भेजना है, ईमेल भेजना है, या फिर कोई भी चीज़ ऐसा भेजना है जो नीड्स टू बी डॉक्यूमेंटेड, तो आपको वो दैट रिटन कम्युनिकेशन शुड बी देयर. नाउ फ्लेक्सिबिलिटी इन द मीटिंग द टारगेट्स. अब ऐसा है ना कि जैसे एक हमने पढ़ा था बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन में कि वो लोग बहुत ओवरबर्डन हो जाते हैं काम के लिए, काम के प्रेशर में, तो प्रॉब्ली वो उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं. तो ऐसा है कि फॉर द प्रॉपर कम्युनिकेशन और फॉर स्मूथ कम्युनिकेशन एंड स्मूथ वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉयज़ को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करना चाहिए. ऑब्वियसली देयर शुड बी सम प्रेशर ऑन द एम्प्लॉयज़ सो दैट दे कैन मीट द टारगेट्स, बट दे शुड नॉट बी ओवर बर्डन और दे शुड नॉट बी ओवर प्रेशराइज. उनको आराम से काम करने देना चाहिए और उनको थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी अलाउ होना चाहिए ताकि वो ओवर बर्डन, क्योंकि देखिए क्या होता है जब भी हम काम करते हैं ना, बहुत प्रेशर में काम करते हैं, तो बहुत लोग प्रेशर में काम कर पाते हैं, लेकिन जब बहुत प्रेशर में काम करना पड़ता है ना, तो आप उसमें अपनी क्रिएटिविटी वैसी नहीं लगा सकते हैं. जो रूटीन जॉब्स है आप प्रेशर में चलो आप काम कर लेते हो, लेकिन जो रूटीन जॉब्स नहीं हैं उसमें थोड़ा सा ना, अगर फ्री रहे दिमाग सोचने के लिए तो द थिंग्स गो बेटर. सो व्हाट इज़ रिकमेंडेड इज़ कि जब आदमी काम कर रहा है तो उस पर उतना बर्डन नहीं दिया जाए, उसे फ्री छोड़ा जाए और वो आराम से काम कर सके. So these were the various. So in this video we discussed about the definition of communication, what are the various barriers of communication, and how we can overcome the barriers of communication. So if you did like the video, please do like, subscribe to the channel, and do not forget to press the bell icon. Stay safe, stay home, and happy learning. Thank you.